Pujpat Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj. He is though vice president but equivalent to president because he is sitting with president. And to all Vaishnava and Vaishnava is present here. Tulsidas, who has written Ramcharitmanas, he wrote one line, सिया राम मैं सब जग जानी. And I am seeing and noticing it, that what he said is precipitating in whole world nowadays. I never thought that it will happen, it can take place. Ram means who is in each and every personality. Ramta hai jo sab mein. And today, Ram, Jai Shri Ram. And this is all because of about more than 1 crore years before, in Treta Yuga, Lord Ram took birth in Ayodhya, and it seems that the same is happening on 22nd January also. When it happened at that time, how much it was celebrated, I can't say, but now externally it is being celebrated whole of world. Hardly there is any Hindu temple who is not celebrating it in whole world. What to speak of India, Canada, USA, Australia, everywhere. And many foreign countries, they have declared holiday on that day. Foreign countries, Mauritius, they have declared holiday. And fortunately, in Sri Govindji Gaudiya Math, we have Ram Darbar. And we are celebrating this occasion on the eve of 22nd January. Eve means 1 day before, 2 days before, 3 days before. 3 evenings we are celebrating before 22nd. And we are fortunate that two Gurudev Sannyasi devotees, pioneer, leading one, and such a high class devotees, Pujpat Bhaktivedanta Van Maharaj, Pujpat Bhaktivedanta Siddhanti Maharaj is present here. I will not miss my name also in this regard, because my name is Ramchandra Das. बोलो सियावर रामचंद्र की So, I am speaking, though I was first not supposed to speak, but they have scheduled me unscheduled. This reminds me, Srila Gurudev's Hari Katha. He used to speak on Ram too much. And I heard that our Pujpat Bhaktivedanta Van Maharaj is also expert in stating Ram Katha. I am curious to hear from him. When Sri Ram went for exile 14 years, that time Bharat and Shatrughan was not in Ayodhya. And when they were called and they came back, up to this time, Sri Dashrath Maharaj, he left this abode.
So when Bharat came, he saw his mother in widow position. First he came to know first he came to know that his father had died. That was a shock. But then he came to know that his brother Ram and Lakshman and Sita ji, they have gone for 14 years of exile. Kekai, his own mother, told this story to him. Our Gurudev used to say, Kekai did this thing purposefully. He took this vow from her husband and asked for these two boons, that Bharat should be king and Ram should go for forest. Now see, once Kekai and Ram were sitting together. Ram was child, 6 years old, 7 years old, like this. And Kekai was feeding him, say, doodh chawal, meetha. And he was eating very nicely. Then he said, Maiya, you feed me so much, you love me so much, how much you can sacrifice for me? He said, I can sacrifice anything for you. He said, if I ask for something very important, will you do it? Yes, I will happily do it. But it will be very, very harsh and hard thing which I am going to ask. Anything you ask. Maiya, I tell you, if I ask this thing, your son will leave you. He says, no problem. Maiya, I tell you, if you will do what I ask, whole world will never give name of Kekai to his daughter. And they will always criticize you, chastise you, and rebuke you. No problem. See, this is called love. This is called love. No problem. I am ready for it. Then he said, Maiya, it may happen that you may become widow. Then she was shaken. It took 2 minutes and she said, no problem. For you, I will accept it. And then he said, tell me what you want. He said, when I will be young and I will be given this kingdom, Yuvraj, I will be made Yuvraj. At that day, you have to ask 2 boons from father, which are due to you, which you owe to him. One, that your son Bharat, he should become king. And second, you have to send me to exile for 14 years. When Kekai heard it, she got fainted. She said, I won't be able to do this. She loved Ram more than Kaushalya.
But Ram gives difficult task to their own loving devotees. As difficult as may be possible. You can see what happened with Draupadi. He was taken to the assembly of the king, and her clothes were going to be taken off. Such a nice devotee of Krishna, 5 Pandavas and Draupadi, they were sent to exile for 12 and 1 year, that is 13 years. Remember, more you have love for him, more you should be ready to sacrifice. More. Anyway, when Bharat came from his Nanihal and he found that his father died, and then when he heard from his mother that Ram has gone for exile, he rebuked his mother. Though she was his mother, she says, "You are no more my mother." And in whole life he never called him her mother. Keke knew it. And he said, when you ask this boon from your father, why your tongue was not rotten? Why तुम्हारे जीव में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? He is rebuked so badly. And she started crying. He wept. He says, I have 2 sons. One is Ram. I asked her to go for exile. He came and touched my feet and went there happily. And this is my real son, and he is rebuking me. I think I forgot to recognize Ram is my real son. She is saying, Ram is my real son. Now, see, Ram went away from Ayodhya. Ram went away from the kingdom of Ayodhya. Reason being, Dashrath lust. He was very much attached to Kekai. She was beautiful. So this is lust, Kam. Because of Kam, he gave her 2 boons, and he could not reject that boons to give to Kekai. He left his body, but because of this, it is said, when Ram goes, when there is lust. And then Manthara, she was crooked. She was hypocrite, kapati. And because of her, Ram went from Ayodhya. Then Kekai, she became angry, being induced by Manthara. And because of her anger, that is क्रोध, कपटता, काम, तीनों राम से दूर कर देते हैं. क्रोध, कपटता, काम. And Ram has gone. Then the same Krodh is in Bharatma also. He is also showing his Krodh. But this Krodh resulted in meeting with Ram. They met. Probably they met in Chitrakoot, I think, if I am not wrong. So Bharatji, he took all his kingdom and Guru Vishisht and all his mothers, including Kekai, and every one of Ayodhya, they went to Chitrakoot, combinedly to call them back, वापिस आ जाओ. And when
King Janak came to know that Bharat is going, he also left from Janakpur and went to Chitrakoot. And there was a big assembly, very, very, very big assembly. And at that time, Bharat fell at the feet of his mother Kaushalya that Ram will not disobey you, call him, ask him, and that he should come back to Ayodhya. Kaushalya said, my husband was man of words. Whatever vow he took, he never broke it. And for this reason he gave his life, and I have become widow. So I cannot do a thing which will go against the vow of my husband. I want Ram should come back, but I cannot order him to come back because of my husband. Then he said to Vishishtaji, Vishishta is Guru. Vishishta says, you are telling right, but I am in doldrum. My mind is not fixed. I am not able to take correct decision. I cannot say this thing. The best person is Janak. Janak is very poised person, very poised, balanced. And let us tell him to give decision. Then Ram and Bharat, they decided to select Janak as judge to give the decision. What should you do? Ram should stay there or he should go. At that time, Raja Janak, he heard the arguments of Bharat. And Bharat said very clearly, Kekai, she told him to go to exile for my sake. And here I am, I say, I don't want kingdom, he should come back. There is no any reason that why is he going. Whole Ayodhya wants him to come back. Whole army wants to come back. Mother wants come back. I also want he should come back. And why he should not come back? There is no any logic. And when it was asked from Ram, Ram said, there is only one reason I am staying here, and that reason is that I gave vow to my father. If my father would have been here and he would have called me that you come, you are no more under this clutches of my vow, you come back, I would have come. But I can't come now. And when it came the time of Janak to give decision, you know what Janak said? I heard this katha from my Gurudev so many times. King Janak said, the love of Bharat is deep ocean. And Maryada of Ram is a mountain. Mountain which cannot be moved, which is atal. But the depth of Bharat ocean, ocean of love is that many mountains can be drowned in it. Everyone started clapping. That decision is going in the side of Bharat. So Bharat logic is very powerful. But Bharat should also know one thing. Who is loving Ram, who is giving all his arguments because of his love. That love is also having its Maryada. There is Maryada of love also. There is rules of love also. And the rule of love is that lover, beloved,
devotee, he should not think what he wants. He should think what his lover wants. प्रेम में ये नहीं देखा जाता मुझे क्या चाहिए, और प्रेम में ये देखा जाता है कि मेरे प्रीतम को क्या चाहिए. And when this thing was announced by King Janak, Bharat came to Lord Ram and fell at his feet. And when he fell at his feet, Ram said, "Oh Bharat, my brother, you should be happy. You are victorious." He said, "No, brother, I am the biggest loser today. King Janak has opened my eye. From the very beginning, I was thinking what I wanted. I never thought of what you want. It should have been my duty when I came here. I should have asked, brother, what do you want? But I was thinking what I want." Brother, Bhaiya, tell me, what do you want? Then Ram revealed his heart to his brother. He says, "I want to go. There are so many tasks to be performed. For a better rule in future, I want that I should go. 14 years exile. You are winner." Gurudev said, "You are winner. In this condition, I accept this kingdom. I am ready to become king. But you love me. I give you a task. You do rule Ayodhya on my behalf." Then Bharat Maharaj made his brother Lord Ram barefooted. You understand? Barefooted. Because he had khadaam, he was walking on khadaam, he took his khadaam, and since onward, Lord Ram was walking barefooted on the whole exile time. Till Hanuman came, then Hanuman started taking Ram on his shoulder. Then he got a ride, good ride. So the whole Sannam Bonam is in this katha which Gurudev insisted and told so many times, that when we love Thakurji and Gurudev, we should not think that what we want. We should think what our Gurudev wants, what Thakurji wants, what Vaishnav wants. This is love. Gaur Premanande Hari Hari Hari. अभी प्रोग्राम ऐसा है कि कुछ बात Bhakti Vedant Van Maharaj ji, he will give lecture, and me and Puja Bhakti Vedant Siddhanti Maharaj will hear it along with you. And tomorrow you will hear from them. You will not have to bear with me. And day after also. Okay? Hare Krishna. ये वो माइक काम नहीं कर रहा तो ये वैष्णवेभ्यो नमो। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सबसे पहले मेरे गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रील वामन गोस्वामी महाराज एवं शिक्षा गुरु एवं सन्यास गुरु नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में अनंत करोड़ साष्टांग दंडवत ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर शतस्य श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी महाराज शिल भक्ति रख श्रीधर गोस्वामी महाराज शिल भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज शिल भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज एवं उपस्थित प्रपूज्य चरण श्रीपाद भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज एवं प्रपूज्य चरण श्रीपाद रामचंद्र प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णववृंद मातृवृंद गौरगत सज्जनवृंद हरिकथा पिपासु सत्रिवृंद सभियों के चरण कमलों में मेरा यथायथ दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। अधिक समय मैं लेना नहीं चाहता हूँ, महाराज जी भी बोलेंगे दो शब्द अच्छा रहता है। तथापि अपने जिहा को जो है पवित्र करने के लिए दो शब्द आप लोग के निकट में बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। टूटी फूटी भाषा में जैसी भी बोलने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। आप लोग महान हो, ये अधम के प्रति कृपा रखते हुए कुछ हृदय में प्रेरणा देंगे, जिसमें हम अभी अभी श्रवण कर रहे हैं रामचंद्र की अपार महिमा। विशेष करके आज भारतवर्ष में जो उत्सव चल रहा है, अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण तथा रामलीला की प्राण प्रतिष्ठा की समारोह में देश विदेश से भी बहुत भक्त लोग भी पहुंच चुके हैं। भारतवर्ष में जितने भी मंदिर है, सभी मंदिरों में इतने सुंदर सजावट हो रहा है। सभी के हृदय में एक ही उल्लास और आनंद की लहरियां चल रही है। यह तक भी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा और उत्सव के लिए इतने अनुदान आ रहे हैं, इसके वर्णन करना कोई संभव नहीं है। शायद आप लोग यूट्यूब में, फेसबुक में, टीवी में भी देखे होंगे शायद, कितने बड़े बड़े अगरबत्तियां भी पहुंच चुके हैं, कितने बड़े बड़े घंटा आदि भी अष्टधातु की जो है घंटा जो है बेल, और ना जाने कितने मिठाइयां भी आ चुका है। सभी के हृदय में कि आनंद उल्लास लहरियां चल रही हैं, क्योंकि अनेक समय तक प्रतीक्षा कर रहे थे सभी लोग, क्योंकि हमारे भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति एक अपूर्व है, जिसको वर्णन करना कोई संभव नहीं है। क्या वर्णन करें? ये अयोध्या कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसके संस्कृति कहा जाता है, कल्चर। भारतवर्ष की सभ्यता संस्कृति की यदि मूल बिंदु कहा जाता है, ये अयोध्या के नाम आ जाता है। सप्त मोक्ष दायिका के स्थान ये अयोध्या के भी नाम आ जाता है। आप लोग श्रवण किया
ये 7 जो है मोक्ष दाई के स्थान है, मुक्ति। ये अयोध्या के नाम है, काशी, कांची, अयोध्या, अवंतिका, मथुरा, दारावत्ता माने दारावती, द्वारिकापुरी, ये समस्त नाम है, कोई साधारण स्थान नहीं। आज से करीब 8 करोड़ साल पहले भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र प्रकट हुए थे, जिससे लघु भागवतामृत ग्रंथ में रूप गोस्वामी वर्णन करते हैं। जैसे हर द्वापर युग में कृष्ण नहीं आते, उसी प्रकार भगवान रामचंद्र भी हर त्रेता युग में नहीं आते। भगवान रामचंद्र जो प्रकट हुए थे ये 24वां चतुर्युग में आए थे, ऐसे वर्णन है शास्त्र। और अभी वर्तमान क्या चल रहे हैं, 28वां चतुर्युग चल रहे हैं। इसलिए मैथमेटिक्स के अनुसार कैलकुलेशन करके देखा गया ये आज से करीब 8 करोड़ साल पहले भगवान रामचंद्र प्रकट हुए थे, जिसके कैलकुलेशन है बहुत सुंदर। काल की गति बहुत चलती रहती है, तो भारतवर्ष के इतिहास तो कितने बदल जाते हैं, कैसे हो जाता है। हम इसलिए कह रहे हैं ये अयोध्या कोई साधारण वस्तु नहीं, वास्तव में भारतवर्ष की गरिमा कहा जाता है, महिमा। बहुत सुंदर ये अपराकृत स्थान है, क्योंकि गुरुदेव कई बार हम लोग के अयोध्या लेकर भी जा चुके, हम दर्शन किया गुरुदेव के साथ। ये लंका क्या है, ये विकृति है, आर्टिफिशियल दिखाते जाते। शूर्पणखा आदि क्या है, ये सब लोगों की छोटा वस्तु के बड़ा करके ही प्रकाश करना है। जैसे अभी श्रवण किया, ये मंथरा क्या है, वास्तव यदि हम इसमें विचार करें, मंथरा क्या, दूसरे के भड़काने वाले ऐसा वास्तव ये दिखाते रहते है तो सत्य, किंतु आज वर्तमान समाज में हम यदि उसको देखें, है क्या चीज हो। किष्किंधा जो है ये प्रकृति का है, कितने सुंदर, जिससे वाल्मीकि रामायण में संग वाल्मीकि जी कितने सुंदर इसमें वर्णन किया गया। मूल रामायण, मूल रामायण जो है ये वाल्मीकि के द्वारा ही रचित हुए हैं, जिसके संस्कृत भाषा में लिखा गया। साक्षात भगवान की कृपा से अनुभव करके वाल्मीकि ऋषि ने इस ग्रंथ को जो प्रकट किया, कितने सुंदर काव्यिक भाषा में प्रकट किया गया। बहुत सुंदर। रामायण जब तक अध्ययन नहीं करें, वास्तव रूप में हम भक्ति राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। हमारे विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी वर्णन भी किया, बोले किसी के यदि शुद्धा भक्ति में प्रवेश करना है अति अवश्य ही रामायण का अध्ययन करें। क्यों? रामायण जो है ये हमारी सभ्यता संस्कृति के आगे बढ़ाते रहते। हम संस्कृत धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। इसके अभी तो कहते हैं डेड लैंग्वेज कहा जाता है, पढ़ाया नहीं जाता है, किंतु वास्तव रूप में ये रामायण की इतनी सुंदर कथाएं जो है इसके अध्ययन करना चाहिए। वास्तव जीवन की एक उदाहरण दे। भगवान रामचंद्र किस प्रकार मर्यादा के जगत में स्थापित किया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु बचन न जाए, ये भी स्थापन किया।
मातृप्रेम, भतृप्रेम, पितृप्रेम, रामचंद्र की आदर्श जो है वो अनूठा है। रामायण के जितने भी क्या बोले नायक नायिका जो है, सबकी जीवन चरित्र ऐसे सुंदर और मधुर है, वो कोई वर्णन करना संभव नहीं। जैसे ऐसे प्रभु जी भाई बता रहे हैं, लोग जगत के लोग कैकेयी के ऊपर दोष लगाते हैं, किंतु वास्तव में कोई दोष नहीं। ये तो लीला आदि करना है, प्रभु की जगत में दिखाना है। बहुत सुंदर में से वर्णन किया गया। शास्त्र में गुरुदेव कथा भी श्रवण कराते थे। रामचंद्र की आदर्श, रामचंद्र की जो मर्यादा, ये भी दिखाया गया। दशरथ महाराज की चरित्र में इतने सुंदर, और क्या वर्णन करें। स्वयं रामचंद्र अपने पिताजी की महिमा लक्ष्मण भी सुनाया, भरत जी की भी सुनाया। ये मेरे पिता कैसे धार्मिक थे, परोपकारी थे, सत्यनिष्ठ थे, अपने वचनों पर कैसे स्थिर। ये सब कथा हम धीरे धीरे श्रवण करेंगे। तो रामायण कोई साधारण वस्तु नहीं। लक्ष्मण, शत्रुघ्न, लक्ष्मण की चरित्र तो इतने मधुर है। एक सेवक की कैसे कर्तव्य है, ये भी दिखाया गया। सुंदर चरित्र है। और भरत के चरित्र और भी सुंदर है, और शत्रुघ्न के चरित्र भी बहुत सुंदर है। सभी के चरित्र ऐसे सुंदर। और मां जानकी सीता देवी के चरित्र, वो तो क्या वर्णन करें। जैसे दीदी आज बोल रहे थे, सीता देवी लक्ष्मण के आदेश उल्लंघन किया है। ये लक्ष्मण जो रेखा जो दिया, और सीता देवी उस रेखा को क्या किया, पार करके बाहर आ गए। उसमें अनेक शिक्षाएं हैं। कोई सीता देवी के यदि भौतिक रूप में हम देखें, इसमें भी सीता जी के कोई दोष नहीं है, क्योंकि भारतीय सभ्यता संस्कृति में भी दिखा गया। कोई साधु दरवाजे में आगे, उसके लुटाना नहीं चाहिए, देना भी चाहिए कुछ। और दूसरी बात है, ये तो आगे लीला करना ही था। बहुत सुंदर ये है। और वो सीता कौन थी, वो छाया सीता के बारे में बता गया। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इसके सुंदर रूप में वर्णन किया गया। ये रामचंद्र की जी स्वादिनी शक्ति कहे, अथवा सर्वशक्ति जो सीता देवी है, उसके रावण कैसे स्पर्श कर पाएंगे। इसलिए चैतन्य महाप्रभु जब दक्षिण देश भ्रमण करने के लिए गए, और एक ब्राह्मण दुखित, महाप्रभु कहने लगे क्या बात है। ले प्रभु, मेरे प्रभु राम की जो अंकसाइनी जो रावण कैसे स्पर्श किया है। तो महाप्रभु 2 श्लोकों के द्वारा उनके समझाया, और उसके प्रमाण भी दिखाया गया। ये रावण जिस सीता को हरण करके ले गए, वो कोई कौन था, थी कौन वो छाया सीता थी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में इससे वर्णन है। अनेक लोग इसको कथा को जानते नहीं हैं, बस सुनाते नहीं हैं, इसलिए लोग क्या कुछ कुछ बोल देते हैं, किंतु महाप्रभु प्रमाण दिखाया। कितने सुंदर ये सब वर्णन है। क्यों आगे जाकर के लीला करनी है, रावण वध, और जिस कार्य के लिए स्वयं भगवान वनवास में आए हैं, उसको भी तो पूरा करनी है।
स्वयं सीता जी भी अनुमोदन किया और स्वयं अग्निदेव के अंदर में सीता देवी प्रवेश किया और उससे एक छाया सीता निकली। देखने में तेज भगवान रामचंद्र सब जानते थे मारीच के पीछे क्यों दौड़े। क्या भगवान रामचंद्र नहीं जानते थे ये असुर है। लोकवत्तो लीला कई वजन मनुष्य के भांति लीला अधिकार। कितना सुंदर ये सब। यदि रामायण हम श्रवण करें दर्शन करें कीर्तन करें आंख से आंसू आ जाएगा चित्त द्रवीभूत हो जाएगा। मैं गुरुदेव के साथ जब विदेश में भ्रमण करता था हॉलैंड आदि देव गुरुदेव वो सीरियल देखते थे और रोते थे। 1987 के 86 में जब रामानंद सागर ने सीरियल यही रामायण के जब रिलीज किया पहले आप लोग भी जानते हैं केवल भारतवर्ष नहीं भारत के सर्वत्र ही है और संडे के जो है सब बंद हो जाओ ऑफिस बंद हो जाता था। यहाँ तक भी देखो हाई रोड में भी लोग टीवी लेकर के बैठ जाते थे। हम देखा उसमें इतनी सुंदर जो राम की कथा कौन सुनना नहीं चाहते। बहुत सुंदर। आज एक पढ़ रहा था सुन रहा था उसे राम की जो रामानंद सागर के जितने भी थे करी तो अधिकांश जो किरदार बोलते हैं ना जो एक्टर जो है कुछ एक्टर तो चले गए रावण भी चले गए हनुमान भी चले गए। दारा सिंह जो है वो हनुमान की रोल किया था रावण की जो क्योंकि वास्तव रूप में देखा जाए रामायण एक अपूर्व ग्रंथ है। इसलिए कहते हैं एक श्लोक में पढ़ता हूं राम रक्षा कवच में लिखा गया क्या लिखा है चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकक्षरं पुंसां महापातक नाशनम। चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकक्षरं पुंसां महापातक नाशनम। 100 करोड़ लोगों के द्वारा एक ग्रंथ रचना हुई। उनके एक एक अक्षर ऐसे शक्तिशाली है समस्त पाप को नष्ट करने वाले। इसलिए लिख रहे हैं इसमें चरित्रं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैक अक्षरं पुंसां महापातक नाशनम। कोई एक बार राम उच्चारण कर दे उल्टा नाम जगत जग जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समान। कितने सुंदर तुलसीदास जी रामचरित मानस में वर्णन कर रहे। राम राम उच्चारण कर नहीं पा रहे बोले मरा तो उच्चारण करो। अमंगलदायक जो नाम है मरा और देखो उल्टा नाम जब के देखो ब्रह्म समान जगत पूज्य बन गए वाल्मीकि ऋषि। यह भी वर्णन हो रहा है प्रभु की नाम इतनी महिमा है। वास्तव रामचंद्र की कृपा हो तो हम भक्ति राज्य में प्रवेश करेंगे। गुरुदेव स्वयं कहते थे मैं पहले राम भक्त था हमारी ट्रेडिशन के अनुसार। और देखो प्रभु राम की कृपा से कृष्ण भक्त की संग प्राप्ति हुई। कितना सुंदर ये सब कर पूर्व आचार्य के विधान भी देखे। राम की महिमा क्या वर्णन करें। और देखो एक शब्द बोलता एक तो वाल्मीकि रामायण संस्कृत में लिखा गया
किंतु हमारे तुलसीदास जी हिंदी भाषा में अति सहज सरल रूप में इतने सुंदर करके भी वर्णन किया, प्रकट किया। 7 कांड लिखा गया। रामायण कितने कांड है? 7 कांड रामायण। देखो कितने सुंदर। कांड शब्द के अर्थ क्या है? जो 7 कांड हम कहते हैं, 7 स्टेज। भक्ति प्राप्ति करने के लिए हमें धीरे धीरे बढ़ना पड़ेगा। तुलसीदास जी पहले बालकांड के रूप में लिखे। बालकांड क्या है? रामचंद्र के द्वारा जगत में प्रकट कराया। बालक की भांति यदि स्वभाव नहीं हो, हम भक्ति राज्य में प्रवेश कर नहीं पाएंगे। छल कपटी, तुलसीदास जी भी लिख रहे हैं, छल कपटी जो है कभी भक्ति ना पावा। छल कपटी नहीं है, जिसमें भागवती भी कह रहे निर्मत्सनांग सतांग, निर्मत्सर साधुगण जो मत्सर रहित। और तुलसीदास जी भी इसी प्रकार बाल कांड लिख रहे हैं। देखो प्रभु की प्राप्ति के लिए पहली क्या चाहिए? निर्मल स्वभाव होनी चाहिए। एक याद आता है, बोले तन में मैल लगे तो पानी से धोए, जल से धोए, और मन में यदि काला लगे तो कैसे धोए? शरीर में हमें कीचड़ लग जाता है, मैला लग जाता है, उससे हम क्या कर देते हैं? पानी से धो देते हैं। किंतु मन में यदि किसी को कालेपन आ जाए, छल कपट आ जाए, वो कैसे धोए? बोले एकमात्र प्रभु के नाम के द्वारा। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रोहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रोहिए। विधि के विधान जान, हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाता छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। सीताराम 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 किया वो भीमान जो भीमान नहीं पाएगा, होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। ओ एक आशा राम जी से दूजे आशा छोड़ दे, एक नाता राम जी से दूजे नाता छोड़ दे। सीताराम 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 कहिए। मुख में राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारी राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम। हे साधु संग राम नाम अंग रंग रंगिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। जिंदगी के डोर सो हत बिना नाच के, तू अकेला नहीं प्यारी राम तेरा साथ में। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहे विधि राखे राम, ताहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए। कितने सुंदर पवित्र मधुर नाम है राम नाम, अति सरल है। राम जी की गाथा महिमा सभी लोग जानते हैं।
महिमा इतनी सुंदर है, राम कथा जो है इतने मधुर है, मधुर चरित्र, हृदय के रुलाने वाले राम कथा जो, यदि हृदय के सरस करना है तो बालक के भांति हम सरल हो जाए और प्रभु की कृपा होगी। इसलिए कहते हैं बालकांड में ऐसे लिखा गया, बाल स्वभाव भगवान रामचंद्र कैसे बाल स्वभाव में कैसे लीला आदि करते हैं। तुलसीदास जी 7 श्लोकों के द्वारा सारी खंडों की जो है इतने सुंदर वर्णन भी कर दिया। 7 खंड की 7 श्लोक, ज्यादा नहीं, कितने सुंदर। गुरुदेव की वंदना किया उन्होंने। आप लोग सब तो महान है, जानते, क्या बताएं। बालकांड इसमें कार्य सरल स्वभाव में होनी चाहिए। और युद्ध कांड में दिखा रहे त्याग की, वैराग्य, त्याग की कथा सुनाया गया है। देखो कितने त्याग वैराग्य की कथा सुनाया, क्योंकि प्रेम ऐसे एक वस्तु है, प्रेम अपने सुख नहीं देखते हैं। नागनी आपनो दुख सभिवांचित तार सुख, मोरे यदि दिया दुख तार है महासुख, सही दुख मोर सुख वर्ज्य। प्रेम ऐसी है, प्रेम त्याग की दिखाते हैं। कभी कभी मैं तो कहता हूं संसार में भी जोड़ियो प्रेम भी देखते हैं। सांसारिक जो प्रेम है, किसी के साथ प्रीति करे, प्रेम करे, उसके लिए हमें कुछ त्याग देना पड़ता है। बेटा के साथ प्रेम प्रीति है तो उसके लिए समय आपको देना पड़ेगा। कहेंगे मम्मी हमें तो ले नहीं गए उधर, पापा हमें तो ले नहीं गए, तो आपको समय त्याग देना पड़ेगा, बच्चे के लिए जाना पड़ेगा। घर संसार में ऐसी है। पहले भौतिक प्रेम को तो हम समझ ले और प्राकृतिक प्रेम तो बाद में समझेंगे। भौतिक प्रेम है जिसको कहा जाता है हम जड़ प्रेम कहते हैं। बात ही सही है कि नहीं? आप प्रेम प्रीति रखें तो त्याग देना पड़ता है, बहुत कुछ त्याग देना पड़ता है। समय रहने पर रहने नहीं पर भी उनके लिए समय देना पड़ता है। अर्थ नहीं रहने पर भी उनके भी अर्थ देना पड़ता है। आप बताओ, त्याग दिखाते रहते, प्रेम मैत्री त्याग, ये सब भी दिखाया गया, कितने सुंदर। और किष्किंधा अरण्य कांड में क्या दिखाया? 7 कांड की थोड़ी सी मैं बता रहा हूं। अरण्य साधना, कठोर साधना भगवान रामचंद्र जगत को दिखाया। जैसे अभी प्रभु जी बता रहे, पितृसत्य, पिताजी के वाक्य पालन करने के लिए भगवान रामचंद्र अरण्य में गए। कितने वैराग्य, साधना दिखा, साधन हमें कैसे करना है। नंगे पैर में कैसे भ्रमण किया। और यहां तक भी जनक नंदिनी श्रद्धा जनक की पुत्री सीता देवी कोई साधारण नहीं, जिनकी चरण कमल जो है लक्ष्मी आदि सब वंदना करते हैं। आज सीता देवी भी अपने पति के साथ जंगल में कैसे बिना चप्पल से, जूते से भ्रमण कर, पैर में कांटे लग रहे, शायद आप लोग रामायण में देखे होंगे। लक्ष्मण भैया वो भी देखो कैसे, यदि कहो वनवास तो केवल रामचंद्र के लिए मिला था, है कि नहीं? तो सीता और लक्ष्मण क्यों गए? किंतु इसके लिए भी बड़े बड़े पंडित लोग, आचार्य जी वर्णन करते हैं, बोले नहीं, तीनों के लिए भी कहा गया है। क्योंकि संस्कृत के अनुसार उसके तीनों के लिए कहा, ऊपर से तो कहा ये राम के लिए 14 साल की वनवास है, किंतु संस्कृत के अनुसार वास्तव वहीं पर जो है एक शब्द होता है, उसमें तीनों के लिए वनवास कहा गया है। जिसलिए स्वयं मंथरा भरत के भी कहने लगे, भरत तुम्हारे सारे कांटे को मैं उखाड़ करके फेंक दिया, तुम्हारे साथ विरोध रखने वाले
लक्ष्मण भी चली गई और सीता देवी भी चलेगी, बस है। ये मंथरा क्या है? जैसे पहली में मंथरा, जिसके मंथ सदा शब्द थर करके कंपता है अनस्टेबल माइंड, दूसरे के भड़काने वाले सब है? ये इतने सुंदर राज परिवार। और मंथरा ने क्या की? आंखों की पलक पड़ते ही कैसे बदल दिया है? रावण की कथा बोले तो कितने सुंदर है कि नहीं? अरे राम राज्य की, रामचंद्र की अभिषेक होते जा रहे है? और स्वयं कई रामचंद्र को अपने पुत्र ही मानते, और कई देखो कितने दान पुण्य आदि कर रहे हैं। आज मानो मेरे ही बेटा राम राजा बन रहे हैं, और उनके लिए सब दान दक्षिणा भी दे रहे। शायद आप लोगों ने रामायण में भी, टीवी भी देखे होंगे, कितने आंखों से आंसू आ गए, दान दक्षिणा दे रहे। किंतु काल चक्र इसी प्रकार भी आ गया है। देवता लोग भी विचार करने लगे, यदि भगवान रामचंद्र राजा बन गए तो आगे की लीला कैसे होगी है? इसमें देवता लोग स्वयं जो है, देखो पुराण में वर्णन किया गया, देवता लोग स्वयं माया देवी के बोले, माया देवी तुम एक काम करो, अभी जाओ मंथरा के हृदय में जाकर बैठ जाओ, और इसके बिल्कुल क्या करो, पासे के वो क्या बोलते हैं, पासा होते हैं ना खेलने के लिए, उसके पुल क्या कर दो, बिल्कुल पलट दो है? देखो साक्षात माया देवी मंथरा के हृदय में आके बैठ गई। इतने सुंदर अयोध्यापुरी सजाया गया है? सारे नगरवासी कितने आनंद उत्सव, राम राज्य है? राम जी राजा होंगे, कितने आनंद की बात है। अंधे से लेकर के, लुंगड़े से लेकर के सभी लोग अयोध्यापुरी में पहुंच चुके। सप्त समुद्र की जल, पवित्र जल भी आ चुके। ऋषि लोग, मंत्र, सभी लोग बस केवल रामचंद्र की प्रतीक्षा करें। जो समय होता है, क्या बोलते हैं, मुहूर्त के समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त जो समय था, उसके लिए अपेक्षा सभी लोग। और देखो, और उसी समय मंथरा ने गईको को क्या कर दिया, कैसे भड़काया है? इतना ही तो कहा दिया, अरे कई तुम जिसके लिए इतने कर रहे हो, क्या जानते हो, कौशल्या होगी राजमाता, और तू बनेगी दासी। देखो कैसे भड़क गया है? ये सब कथा बहुत सुंदर में वर्णन है? और उसमें कोई कई कहने लगी, मंथरा तुम बताओ मुझे अभी क्या करना है, अभी तो समय हो गया है, एक सेकंड रह गया मानो रामचंद्र की। अरे एक सेकंड की आंखों की पलक पड़ते ही सब कुछ उलट पलट हो जाता है, भूचाल आ जाता है ना। भूचाल में क्या होता है, एक सेकंड में सब कुछ पलट जाता है कि नहीं जाता है? बैठे बस। गुजरात में भुज में जो है कुछ साल पहले भूचाल आई, बस देखते देखते कितने हजारों लोग जो है भूगर्भ में चली। सब क्या नहीं हो सकता। मंथरा भी कहने लगी, अरे कई तू क्या सोच रही हो, आंखों की पलक पड़ते ही सब कुछ पलट जाए। और ऐसे मंत्रणा दी, देखो दशरथ महाराज से तुमने 2 बार मांगी थी, अभी इस समय जो है बहुत सुंदर समय है, वो 2 बार मांग लो। एक वर्ष रामचंद्र के लिए 14 साल के लिए वनवास, और दूसरी बार में तुम्हारे पुत्र भरत अयोध्या के राजा बन, ये पर मांग लो। और ठीक उसी समय
दशरथ महाराज रामचंद्र के साथ कुछ वार्तालाप कर रहे थे। है? एक राजा होने के नाते किस प्रकार अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, दायित्व जो पालन करना है, उसके समझा रहे थे। और ठीक उसी समय कैकेयी ने अपने इसको भेजा, क्या बोले, दासी को भेजा, जाओ दशरथ महाराज जी को बुला करके लाओ मेरे कमरा में। दशरथ महाराज जी आए और कोई मंत्रा के अनुसार कैकेयी ने क्या की, बस को भवन में सारे अलंकार वस्त्र आदि त्याग करके जीर्ण शीर्ण मलिन वस्त्र लेकर गए। देखो कैसे कितने सुंदर ये दिखा रहे हैं सब। वही जब लीला आदि के जो है 2 बार जो मंगा था, स्वयं भगवान रामचंद्र जब छोटे थे ना, जैसे प्रभु जी बता रहे हैं, वास्तविक सत्य है, गुरुदेव कथा को सुनाते थे। एक दिन स्वयं कैकेयी रामचंद्र के गोद में लेकर के मिठाइयाँ और खीर जो खिला रही थी और बहुत प्यार प्रीति कर रही थी। उस समय भगवान रामचंद्र करने लगे, माँ मुझे एक वर दे दो बस। बोले क्या चाहिए? ये मेरा जब राज्याभिषेक होगा ना, तो मेरे पिताजी से 2 वर मांग लेना। एक वर से मेरे लिए 14 साल की वनवास और दूसरी बार में भरत की राज। देखो कैसे ये सब लीलाएं होती, यही था लीला की सूत्रधार जो है, ये सब करते जा रहे हैं, कितने सब दिखा रहे हैं। जैसे मैंने पहले कहा, लोग कैकेयी के ऊपर दोष लगाते हैं, किंतु वास्तव ही नहीं। स्वयं भगवान तो लीलाधारी, लीला पुरुषोत्तम, लीला करने वाले, जगत को दिखाते हैं। और दशरथ महाराज जी 2 बार ही मांग लिए। एक वर्ष से 14 साल के लिए राम की वनवास और भरत की राज्याभिषेक। देखो यह पर एक सुंदर कथा जहां तुलसीदास जी रामचरितमानस में वर्णन करते हैं। दशरथ महाराज उस समय कुछ नहीं बोले है? और ऋषि लोग रामचंद्र की अभिषेक के लिए जब विराजमान है, पहले समय मुहूर्त जो है वो अतिबाहित हो रहा है। जाओ रामचंद्र, तुम अपने पिताजी को जो है बुला करके लाओ। रामचंद्र जी गए कैकेयी की कक्ष में, देखा भरत जी दशरथ महाराज सिर नीचा करके बैठे। कैसे एक पिता कहे निर्दोषी को जो है वन में भेज दे, दोषी हो उसकी दंड दिया जाता है। रामचंद्र की कौन सा दोष था आप बताओ? कोई दोष था? दशरथ महाराज कुछ नहीं बोले। कैकेयी ने क्या कही? ये तुम्हारे पिताजी तो मुझे 2 वर देने के लिए प्रतिज्ञा की थी, मैं मांग लिया। एक वर्ष से राम तुम्हें 14 साल के लिए मुनि वेश धारण करके वन में रहना पड़ेगा, और दूसरी बार में मेरे पुत्र भरत अयोध्या के सिंहासन प्राप्त करे। देखो इस कथा सुनते ही रामचंद्र कितने प्रसन्न हुए। तुलसीदास जी वर्णन कर रहे हैं रामचरितमानस में। रामचंद्र जी ने प्रसन्न हुए, अहो ते धन्ना, प्रसन्न हो गए। क्यों? रामचंद्र कह रहे हैं देखो जंगल में वास सत्तिक वनस्तु सत्तिको वास, वन में सत्तिक भास, मुनिजनों की संग, गंगा आदि पवित्र तीर्थ में रहना। अच्छा
इसलिए शास्त्र में कह रहा वनस्तु सत्य को वास ग्रामस्य तमस उच्चते। इसे सत्य की वास कहां होता है? वन में, जहां पर ऐसे सात्विक वस्तु आदि ग्रहण करेंगे, वन की फल मूल और शाक आदि ग्रहण करेंगे, और मुनि ऋषियों की संग प्राप्त करेंगे, साधु संग। हम लोग साधु संग करना नहीं चाहते हैं, किंतु भगवान रामचंद्र कह रहे हैं बहुत ही धन्य है। जिस प्रकार वर्णन करते हैं एक छोटा बच्चा के यदि आप नया वस्त्र दे दे, छोटा बच्चा क्या करते हैं? पुराना वस्त्र की जैसे आनंद से उसको उतार देते हैं और नया वस्त्र की जैसे ग्रहण कर लेते हैं। अब वो भगवान रामचंद्र बहुत प्रसन्न हुए, स्वीकार कर लिया ये मां इतना ही था। किंतु दशरथ महाराज कुछ नहीं बोले। दशरथ महाराज बोले ये राम तुम वन में जाओ, किंतु पितृसत्य पिताजी ने यो वचन दिया। देखो ये कथा स्वयं रामचंद्र लक्ष्मण ने भी समझाया। लक्ष्मण इसे सुनते ही तो इतने विद्रोह कर दिया है, ये पिताजी कैसे? मेरे भाई राम के वनवास, चलो किसी के राज्य ने दे, वन में क्यों? एक अपराधी की जो है, क्रिमिनल के जो है, उसके राज्य से जो है निकाल दिया जाता है, वह प्राणदंड दिया जाता है। रामचंद्र कौन सा अपराध किया आप बताओ? किंतु भगवान रामचंद्र से कैसे? और भगवान रामचंद्र लक्ष्मण की भी सुनाए, लक्ष्मण यदि एक बार यदि हमारे पिताजी के लिए तुमने ऐसे कटु शब्द व्यवहार किया तो तुम मेरे भाई होने के योग्य नहीं है, तुमको मैं निकाल दूं। देखो लक्ष्मण जी क्या गए, रामचंद्र की चरण पकड़े, प्रभु कले भैया मुझे शांत, जहां पर राम तहां पर लक्ष्मण, जहां पर लक्ष्मण तहां पर राम। है? कितना सुंदर है? लक्ष्मण एक बार नहीं, दो बार और 3 बार जो है विरोध किया रामचंद्र की वचन के ऊपर। आज देखो कितने सुंदर ये सब रामायण यदि हम पढ़े, गुरुदेव इस कथा को सुनाते थे, मेरे याद है यही रामचंद्र की जो रामनवमी जो है उसके आगे पीछे लेकर के 1 महीने तक गुरुदेव वाल्मीकि रामायण जो है कीर्तन करके पढ़ा सुनाते थे। इतने सुंदर एक गहरी गहरी कथा को जो है गुरुदेव वर्णन करते थे। इतने सुंदर राम की कथा है, और स्वयं गुरुदेव रोते थे राम की कथा। लक्ष्मण जैसे भाई किसी को है आप बताओ? न भूतो न भविष्यति। रामचंद्र की सेवा के लिए समर्पित आत्मा का है। इसलिए तुलसीदास जी भी रामचरितमानस में भी लिखते हैं, सेवक चाहे सुख और व्यसनी चाहे ऊर्ध्व गति। मैं भूल गया पैर, इसको पैर है उसमें लिख रहे हैं, सेवक कोई चाहे जो मुझे सुख प्राप्ति हो, और व्यसनी, व्यसन माने एक शब्द कहा दिया गया जो असती जो है वो परागति को प्राप्त कर सकते हैं? वो नहीं कर सकते। बोले पृथ्वी के जैसे दोहन करके दूध प्राप्ति होता है, नहीं होता। रामचरितमानस में तुलसीदास भी लिखे, देखो लक्ष्मण जैसे सेवक न भूतो न भविष्यति। सीता देवी की भी कितने सुंदर चरित्र है। राम जी के सेवा के लिए जनक नंदिनी सीता देवी चल पड़ी, एक बार भी नहीं बोले नहीं। सभी लोग बोले सीता तुम मत जाओ,
संग रामचंद्र भी बोले, सीते तुम जंगल में कहां भ्रमण करते रहोगे, कितने कांटे हैं, कितने ना जाने कैसे राक्षस भी होगा, ना जाने कैसे कैसे बाधा विपत्ति। किंतु सीता देवी बोली, नहीं पतिदेव, जहां पर राम वहां पर सीता। देखो चले कितना पवित्र कथा है। पवित्र ये समस्त चरित्र हमें दिखाया गया। रामचरित मानस ऐसे सुंदर है, इसे अरण्य कांड में इसमें दिखाया गया साधना है, कितनी कठोर साधना आदि हमें दिखाया गया। तो इस चौथा जो है किष्किंधा कांड जो है, सतकांड है ना, किष्किंधा कांड चौथा कांड, मित्रता संग भगवान रामचंद्र सुग्रीव के साथ कैसे मित्रता आदि की है, ये भी दिखाया गया। बाली जी ने तो यही प्रश्न किया, शायद आप लोग जानते होंगे, शायद जब भगवान रामचंद्र बाली को जो है पीछे से बाण मारा, बाली ने वही प्रश्न पूछा, जब आप क्षत्रिय हो, क्षत्रिय लोग जो है आमने सामने युद्ध करते, पीछे से नहीं, आप मुझे पीछे क्यों बाण मारा? बाली ने प्रश्न पूछा। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय बरु वचन न जाए। रामचंद्र कितने सुंदर उदाहरण भी दिया। रामचरित मानस में तुलसीदास जी भी लिख रहे, बाली सुनो, मुझे पता है तुम्हारे सामने संग विष्णु भी आ जाए और तुमने उसकी आधी बल तुम ले लो और तुम्हारी है, मुझे पता है। पीछे से मारा किस लिए? उसमें लिख रहे हैं अनुज के पत्नी के साथ जो कुव्यवहार आदि करते हैं, पर नारी के जो कुव्यवहार आदि करते हैं, वो वध के योग्य है। उसे किसी से मारो, उसके कहा जाता क्या? आतताई कहा जाता है, आतताई बोलते हैं। उसके आतताई के पीछे मारो, आगे मारो, उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो युद्ध के रन नहीं रहता है। बाली कोई सामान्य नहीं था, जिसके साथ रावण भी युद्ध करने के लिए आ गए थे, युद्धं देव। ये सब कथा भी वर्णन है। अंत में जब बाली भगवान रामचंद्र के निकट बोले, प्रभु मुझे क्षमा कर दो, तो भगवान रामचंद्र बोले, बाली तुमको जो वर मांग लो, तुमको तुम्हारे प्राण में दे देता हूं, वापिस कर देता हूं। बाली ने क्या बोला? बहुत सुंदर ये है, जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अबत नाय। कितने बड़े बड़े ऋषि लोग, मुनि लोग, एक जन्म नहीं हजारों जन्म तक तपस्या आदि करते रहते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराई, अंत काल राम नाम अबत नाय। प्रभु के नाम, टाइम हो गया, बंद कर। अरे कितने सुंदर है, देखो, जन्म जन्म मुनि जतन कराई। हम 2 दिन दीक्षा ले लेते हैं, फिर कहते हैं गुरुदेव हमारे तो कुछ नहीं हुआ, क्या होगा? हम 2 दिन दीक्षा लेने के बाद तीसरे दिन कहते हैं गुरुदेव मेरे तो कुछ नहीं हुआ। अरे कुछ भजन तो करो, गुरुदेव सुनाते थे, हमारी बात नहीं बोल रहा हूं, गुरुदेव स्वयं कहते थे। इसलिए कह रहे हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराएं। कितने जन्म जतन करके भी अंत काल राम नाम अबत नाय। प्रभु के नाम आ जाना, मुंह में उच्चारण होना इतने सहज सरल नहीं है। तोता भी राम नाम जप करते हैं, और वो तोते के ऊपर जब बिल्ली क्या करते हैं? झपटते हैं। और तोता क्या करते हैं? तोते राम नाम बोलते हैं, वो क्या बोलता है? टैं 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 करते हैं। इसलिए बाली कह रहे हैं, प्रभु मुझे यही वर दीजिए। आपकी मुखारविंद दर्शन करते हुए, आपकी गोद में मेरी सिरहाना रख करके, आपकी नाम करते करते मेरा शरीर उठ जाए, ध्यानतर हो जाए। ये सब शिक्षा है, बहुत सुंदर सब कथा है। देखो
भगवान रामचंद्र सुग्रीव के साथ मित्रता भी निभाया है? और फिर आज ये सुंदरकांड, सुंदर सुंदर सब कथाएं हैं है? लंका कांड में क्या दिखाया गया? एक एक कांड की कथा जो है, लंका कांड में क्या दिखा? घोर विपत्ति की बात दिखाया गया है? जीवन में हमें बहुत कुछ संघर्ष करना पड़ता है। जीवन कोई फूल के द्वारा सजा नहीं रखा गया। जीवन में अनेक कुछ संघर्ष, विपत्ति, आपत्ति को सामना करना पड़ेगा है? रामचंद्र भी दिखाया गया है? एक एक शत्रु के वध करना इतने सहज नहीं था। यद्यपि भगवान रामचंद्र सर्वसमर्थ है? तथापि भगवान रामचंद्र देव विभीषण की रहता है कि नहीं है? इंद्रजित के वध करने वाले कौन है? लक्ष्मण ने इंद्रजित के वध किया, किंतु कैसे वध किया ये भी दिखाया। स्वयं विभीषण ने भी बता दिया है? जब वो कौन सा कुंभ नहीं, जब इंद्रजित इसमें जब वो यज्ञ कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे उस समय लक्ष्मण को भी बोले, लक्ष्मण इस समय तुम इंद्रजित के जो है ये करो, आक्रमण करो, ये यज्ञ पूरा है, ये तुम इंद्रजित के भी मार नहीं सकते। जो लक्ष्मण 14 साल तक कैसे ब्रह्मचर्य जीवन पालन किया, 14 साल तक जिन्होंने नारी मुख दर्शन नहीं किया, 14 साल तक जिन्होंने भोजन भी नहीं करा है, और 14 साल तक जिन्होंने कभी सोए भी नहीं, अनाहारनंद, तो वही तो इंद्रजित के वध कर सकते हैं। तथापि देखा है? देखो कैसे सुंदर लक्ष्मण कोई साधारण नहीं। इसमें लंका कांड में भी दिखाया कितने सुंदर ये समस्त वर्णन है। हमारे तुलसीदास जी रामचरित मानस में ऐसे से सुंदर वर्णन करके भी दिखा है। और उत्तराखंड में है मंगल मंगली है, कितने सुंदर है। छयखंड की जी विशेष कहा गया ये उत्तराखंड है। बहुत सुंदर लव कुश की कथा भी है, कथाएं भी है। जैसे कहते हैं ना, हम लोग कहाँ से आए, सीता देवी की वनवास है, वाल्मीकि आश्रम में रही, कितने ये समस्त दिखाया गया है। निर्दोषी सीता देवी, जिससे कोई दोष नहीं था। रामचंद्र स्वयं जानते थे मर्यादा पुरुषोत्तम लोकरंजन प्रजारंजन रामचंद्र है, ये भी दिखाया गया। लोग सीता देवी के रामचंद्र के ऊपर दोष लगाते हैं, बोले सीता देवी की जब दोष ही नहीं था, पति स्वयं ही जानते हैं हमारी पत्नी जो है सती साध्वी है, तो रामचंद्र सीता देवी के क्यों वन में वास भेज दिया, वाल्मीकि आश्रम में क्यों भेजा? आप बताओ। आप स्वयं जानते हैं अपनी पत्नी कोई दोष नहीं, निर्मल चरित्र है, आप तो स्वयं जानते हो ना है? आप बताओ। जिसमें रामचंद्र कह रहे सीते है, सीता देवी स्वयं कहने लगे, रामचंद्र कहने लगे सीते तुम्हारे कोई दोष नहीं, मैं जानता हूं है? किंतु मैं जब राज सिंहासन में बैठे तो शपथ ग्रहण किया। एक राजा के कर्तव्य कैसे होता है? सन्यासी के भांति कर्तव्यनिष्ठ है, अपने कर्तव्य को भ्रष्ट रखना पड़ता। तथापि रामचंद्र ने सीते तुमको मैं वनवास नहीं देना नहीं चाहता हूं। संग सीता देवी रामचंद्र के बुलाए, कहते प्रभु पतिदेव सुनिए, आपको मैं याद दिलाता हूं, ये जितने हमारे पूर्वजों की जो आप मूर्ति देख रहे हैं, यही आपकी साक्षी देंगे, विटनेस देंगे। एक राजा की कर्तव्य क्या है? प्रजा की सुख सुविधा देखना। प्रजा क्या चाहते हैं? राजा क्या है?
प्रजाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं, प्रजा क्या चाहते हैं। देखो कितने सुंदर स्वयं सीता जी भी बोली। गुरुदेव ये सब कथा भी सुनाते थे। और ऐसे सुंदर है सीता देवी वाल्मीकि आश्रम में कैसे रहे, पवित्र होकर के 2 संतान को भी जन्म दिया। लव और कुश की कथा जो है कितने सुंदर, कैसे छोटे बच्चे को कैसे पालन पोषण करते थे। शायद आप लोग रामायण में देखे होंगे, आपका हृदय अपने आप द्रवित, आंखों से आंसू आ गए, आएगी कि नहीं? जनक नंदिनी सीता है, देखो कैसे पानी भरती थी, कुएं से पानी, सब कुछ कर दी। अपने परिचय नहीं दी थी, वन देवी के रूप में परिचय दिया है। देखो लवकुश कैसे, और लवकुश के भी चरित्र भी ऐसे सुंदर है। वाल्मीकि द्वारा शिक्षित होकर के सारे धनुष विद्या समस्त विद्वा के वो विद्वान है। रघुवंश की गर्भ महिमा को उन्होंने क्या दिखाया है। शायद आप लोग देखे होंगे, शायद जो अश्वमेध युग के समय वो घोड़े की भी पकड़ लिया है और सभी की परास्त कर दी, हनुमान के भी बंदी बनाया, क्यों? विटनेस के भी देखे होंगे ना। देखो रामचंद्र भी प्रश्न किया था, ये बताओ तुम लोग छोटे छोटे ये यज्ञ के घोड़े के क्यों आप बंदी बनाया? तो भरत उन्होंने क्या उत्तर दिया? इसमें लिखा है, ए रघुवंश की घोड़ा, यज्ञ घोड़ा, जो इसको रोकेगा उसके साथ युद्ध करना। क्या आप अकेला ही है क्या धनुर्धारी? हम भी क्षत्रिय हैं। देखो हाँ आरती समाप्त कर देना। कितने सुंदर युद्ध की बात, आहा कितने सुंदर ये सब कथाएं है। वृंदावन बिहारी लाल की है। लवकुश की कथा, पाताल प्रवेश आदि ये समस्त बहुत सुंदर रूप में हमारे आचार्य द्वारा वर्णन किया गया है। ये तो मैं तो संक्षेप में बता दिया अभी है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राम। कल का प्रोग्राम महाराज महाराज